Morning, everyone. चलिए, तो कल की क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट पॉइंट परसेंटेज प्योरिटी ना। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फिर लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होगा लिमिटिंग रीजेंट। LR पहले इसमें लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। लिमिटिंग रीजेंट में लिखिए द रिएक्टेंट विच गिव्स the reactant which gives the reactant which gives the reactant which gives least amount of least इधर लिखा हुआ है the reactant which gives least amount of the reactant which gives least amount of product least amount of product least amount of product on being on being completely consumed on being completely consumed on being completely consumed is known as limiting reagent. On being completely consumed is known as limiting reagent. Is known as limiting reagent. और करके डेफिनेशन लिखिए दूसरी और सेकंड डेफिनेशन it is also defined as it is also defined as it is also defined as that reactant it is also defined as that reactant which is completely consumed. It is also defined as that reactant when a reaction goes to when a reaction goes to completion when a reaction goes to completion so उसी में आगे लिख लीजिए it involve two or more reactants it involve two or more reactants it involve two or more reactants next heading calculation of limiting reagent it involve two or more reaction last line
Calculation of limiting reagent. Calculation of limiting reagent. First point note करिए. Calculate the number of moles calculate the number of moles of calculate the number of moles of each reactant. Calculate the number of moles of each reactant present in the reaction. Calculate the number of moles of each reactant present in the reaction. Calculate the number of moles of each reactant present in the reaction. Second, calculate the number of moles of each reactant present in the reaction. Second point, divide the number of moles divide the number of moles of each reactant divide the number of moles of each reactant divide the number of moles of each reactant by their stoichiometric coefficient divide the number of moles of each reactant by their stoichiometric coefficient divide the number of moles of each reactant by their stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation by their stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. Third point, the reactant. Third point लिखिए, the reactant third point, the reactant for which the reactant for which moles upon coefficient ratio is the reactant for which moles upon coefficient ratio the reactant for which moles upon coefficient ratio is minimum is minimum will act as a limiting reagent will act as a limiting reagent. Noted? चलिए तो देन नेक्स्ट देखिए, इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं हम. लिमिटिंग रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे मूल कंसेप्ट में हर जगह यूज होने वाला है. ये पूरे मूल कंसेप्ट में कोई अकेला ऐसा स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है, हर जगह यूज होगा. वहां पे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको एलआर पहले फाइंड आउट करना ही पड़ता है. तो लिमिटिंग रीजेंट या एलआर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो मेथड आपने लिख ही लिया, और 2 से 3 रिएक्टेंट होंगे तो उस केस में हम एलआर फाइंड आउट करते हैं. इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया है, मान लीजिए रिएक्शन है आपके पास H2 और I2 which gives 2HI.
H2I2 gives 2HI, ये H2I2 2HI दे रहे हैं। अब इस केस में अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि आपने इसके लिए है 6 मोल्स, 6 मोल्स इसके लिए, और इसके बोल दिया गया आपने 10 मोल्स लिए, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, if initially 6 mole of H2 and 10 mole of I2, 6 mole of H2 and 10 mole of I2 are taken, then what will be the value, what will be the amount of HI? Then calculate number of moles of HI. मोल्स ही लिखते हैं, मास निकालना हो तो मास तो निकाल ही सकते हैं। Then calculate number of moles of HI. कितना बनेगा बताओ? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने पढ़ा है, कितना बनता है? अगर 6 मोल H2 लिया गया है, 10 मोल I2 लिया गया है, तो HI के कितने मोल्स बनेंगे? 16। 6 मोल H2 है, 10 मोल I2 है, तो HI के बनेंगे 16 मोल्स, 10 + 6 16 मोल्स बनेंगे। क्या आंसर लिख रहे हो तुम लोग? क्या पढ़ाया था स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस में? इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है। रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन बताती है कि H2 का 1 मोल I2 का 1 मोल जब आपस में कंबाइन होंगे तो HI के 2 मोल बनेंगे। ऐसा थोड़ी सीधा उठा के ऐड कर दिया, इसका 6 इसका 10 उसका बन जाएगा 16, ऐसे कब से होने लगा? तो रिएक्शन किस लिए लिखी है फिर? H2 का 1 मोल चाहिए, HI का I2 का 1 मोल चाहिए, दोनों का एक एक आएगा, प्लस हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो HI के 2 बन रहे हैं। तो अगर मैं H2 के 2 मोल लेके आया तो उसको I2 का भी 2 चाहिए होगा, तो HI के 4 मोल बनेंगे, 32 मोल्स। एट मोल्स। चलो पहले यही नॉर्मल समझो, ये 10 हटाओ, 10 कट कर रहा हूं मैं, ये 10 मैंने कट कर दिया। सब लोग क्वेश्चन में कट करिए 10, समझ ही नहीं आ रहा है तुमको, एलआर क्या समझेगा? अभी कल इतनी क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज यील्ड पे कराई, क्या समझ में आया वहां से? 6 मोल ऑफ HO2 एंड 6 मोल ऑफ I2 रखो, 6 मोल H2 एंड 6 मोल I2 रखिए। यहां से हमें ये बताना है अभी बताओ HI कितना बनेगा? HI यहाँ पे अभी कितना बनेगा? अगर 6 मोल H2 लिया है, 6 मोल I2 लिया है, तो HI के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। कैसे 2 मोल बन रहे हैं? या तो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आंसर लिख रहे हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। स्टैचोमेट्रिक रिलेशन में क्या पढ़ाया था? दिमाग से उड़ गया है क्या सब, या कुछ समझ ही नहीं आया? स्टैचोमेट्री में क्या क्या लिखवाया था कि इसके कोफिशिएंट क्या बताते हैं कि अगर इसका 1 मोल गया,
इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो 1 1 मोल मिलेंगे तो इसका कितना बनाएंगे 2 मोल। तो अगर इसका एक एक मोल मिलके 2 मोल बना रहा है तो इसका 6 मोल और इसका 6 मोल मिलके इसका कितना बनाएगा 12 मोल। ये सीधा सीधा रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है? ये एक लाइन नहीं समझ में आ रही है तुमको? एक मोल मिलके उसका 2 बना रहे हैं, तो इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस पूरी रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, जैसे Na से मल्टीप्लाई किया था। अभी इसमें 2 मोल अगर H2I2 के 2 मोल्स ले लिए जाए तो HI का कितना बनेगा? अगर इसका 2 ले लिया और इसका भी 2 ले लिया तो HI के 4 मोल्स बन जाएंगे। इसमें समझना क्या है, तो सिंपल है, यही नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार ये तो एक तो चिल्लाते हैं बच्चे। 1 मोल कंबाइन होके 2 मोल बनाया, देन 2 मोल्स कंबाइन होके 4 मोल बनाएगा। रिएक्शन यही तो बता रही है। 16 कहां से करेक्ट हो गया यार? डायरेक्ट ऐड करके लिखा है क्या मैंने? रिलेशन यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐड थोड़ी कर रहा हूं। कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, दिमाग यूज करो। क्या बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है? कान है ना? पहले सुनो, ऐड थोड़ी कर रहा हूं मैं, 6 6 12 बोल रहा हूं क्या? मैं रिलेशन यूज कर रहा हूं। H2I2 अगर इसका 6 मोल है तो वो भी इसके 6 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो इसके 12 बनाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो अगर इसका 8 मोल है तो उसको कितना I2 चाहिए होगा? वो 8 मोल के साथ ही कंबाइन हो पाएगा ना। इसका 8 इसके 8 के साथ कंबाइन होगा तो इसका 16 बनाएगा। यहाँ पे 10 मोल्स हमने ले रखा था, तो डायरेक्ट ऐड करके थोड़ी लिख देना है 10 + 6 जो लिखा था यहाँ पे 16। ऐड कर रहा हूं क्या मैं? ऐड थोड़ी कर रहा हूं, नॉर्मल रिलेशन यूज कर रहा हूं। नोटबुक रिवाइज करके नहीं आते तुम लोग? एग्जाम्पल क्या लिखवाया था? N2 3H2 2NH3, इसका एग्जाम्पल लिया था कि नहीं लिया था? ये देखो पहले नोटबुक में सब क्या क्या लिखवाया था यहाँ। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल के साथ कंबाइन होगा, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंबाइन होकर इसका 2 मोल बना रहा है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया था क्या सीधा? 1 + 3 ऐड कर देता तो ये तो 4 होना चाहिए था। तुम तो इस ऐड करके सीधा आंसर बता रहे हो कि 1 + 3 ऐड होगा तो 4 आएगा। 4 कहाँ आ रहा है आंसर? 4 आंसर तो 2 आया ना, कि इसका 1 और इसके 3 मोल मिलेंगे तो इसका 2 मोल बनाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 2, यहाँ कोफिशिएंट है 3, यहाँ कोफिशिएंट है 1। डायरेक्ट ऐड थोड़ी कर देना उठा के। पहले ये समझ में आया? 6 6 मोल का समझ में आया? तो 1 मोल H2 will combine with 1 mole I2 and give 2 moles HI। ये रिएक्शन बता रही है हमको। रिएक्शन हमेशा मोल्स का रिलेशन जो बता रही है वो ये बता रही है कि 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तब 2 मोल HI बन रहा है। तो अगर हमने 6 मोल H2 लिया तो 6 मोल H2 जो है वो 6 मोल I2 के साथ कंबाइन होगा एंड गिव 12 मोल्स HI। तो 6 मोल H2 6 मोल I2 के साथ कंबाइन होगा, 12 मोल HI का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि मोल का रिलेशन पता है 1 1 2, तो शायद सीधा सीधा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मोल कंबाइन होकर 12 मोल। इसका जो स्टैचोमेट्रिक रिलेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि 6 मोल H2 6 मोल I2 के साथ कंबाइन हुआ तो 12 बनाएगा। ऐसा नहीं मैं 6 6 को हर बार ऐड कर दूंगा, वो डिपेंड करेगा कि इनका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ कोफिशिएंट दोनों का सेम है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, तो दोनों का एक एक मोल कंबाइन हो रहा है। अगर कोफिशिएंट अलग होता, एक जगह मान लो 1 होता एक जगह 3 होता,
तो फिर 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन होता, तब प्रोडक्ट बनाएगा उसके अकॉर्डिंग। नोट करिए पहले यहां तक, नोटेड। अलग का केस अभी मत, पहले सुनो इधर, अलग का केस नहीं बता रहा, पहले नॉर्मल समझ नहीं आ रहा, अलग का केस पहले नॉर्मल करो फिर अलग का केस पे आना। N2 3H2, ये प्रोडक्ट लिया था 2NH3। अभी N2 के मैंने लिए 4 मोल्स, H2 के लिए 12 मोल्स, NH3 कितना बनेगा? N2 के 4 मोल्स है, H2 के 12 मोल्स है, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा? अभी 8 मोल समझ में आ रहा है? 8 मोल तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके नहीं लिख देना है, 4 + 12 लिख दिया, इधर 16 आंसर। ये 16 तो पहली बात नहीं होगा कि डायरेक्ट दोनों को उठा के ऐड कर दिया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रिलेशन देखेंगे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का। दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 मोल N2, ये रिलेशन, ये इक्वेशन हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1 मोल N2 कंबाइन विथ 3 मोल H2 and gives 2 मोल NH3, 2 मोल NH3। तो अगर इस पूरी रिएक्शन में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ कंबाइन हुआ और 2 मोल NH3 दे रहा है। तो अगर मैं इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां आ जाएगा 4 मोल N2। अगर 1 मोल N2 की जगह 4 मोल N2 आ गया तो उसको कितना H2 चाहिए होगा? उसको H2 चाहिए होगा 4 × 3 यानी 12 मोल। तो 4 मोल N2 combined with 12 मोल H2 and gives 8 मोल NH3। रिएक्शन से हम ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि 4 मोल N2 12 मोल H2 और उससे बनेगा क्या? 8 मोल NH3। ठीक है, तो यहां पे आंसर हमारा आएगा ये 8 मोल्स। नोट करिए। डन। चलो थर्ड बताइए। अभी हम रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट 2A + 3B gives 5C। A के मोल्स लिए हैं 10, ठीक है, B के मोल्स लिए हैं 15, 10 मोल्स 15 मोल्स। C के कितने मोल बनेंगे? A का लिया गया 10 मोल्स, B का लिया गया 15 मोल्स, तो C के कितने मोल्स बनेंगे? ट्वेंटी 50 20 सब आंसर आ गए। 25 बनेगा, क्यों बनेगा? रिलेशन लिखा जाएगा 2 मोल्स ऑफ A, पहले रिलेशन लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ A
combine with 3 moles of B and gives 5 moles of C. तो देखो अब ये 2 मोल्स के साथ रिलेशन है। 2 मोल A 3 मोल B के साथ कंबाइन हो रहा है और 5 मोल C के बना रहा है। तो अगर 1 मोल पूछा जाए, 1 मोल कितने के साथ कंबाइन होगा? 1 मोल ऑफ A। तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब क्या हो गया? मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया है। तो 1 मोल ऑफ A विल कंबाइन विथ 3/2 मोल्स। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं और कुछ नया नहीं लगा रहे हैं, जो यूनिटरी मेथड पढ़ते आते हैं वही यूनिटरी मेथड है। अगर 2 मोल कंबाइन हो रहा है 3 के साथ, तो 1 मोल कितने के साथ कंबाइन होगा? तो 1 मोल कंबाइन होगा 3/2 के साथ। 3/2 मोल्स ऑफ B एंड गिव्स, और कितना देगा? इधर आ जाएगा 5/2 मोल्स ऑफ C। तो पूछा कितने में है? 10 मोल्स A के 10 मोल, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहां 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 मोल्स ऑफ A कंबाइन विथ 10 इंटू 3/2, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मोल्स ऑफ B एंड गिव्स 10 इंटू 5/2 मोल्स ऑफ C। तो 10 मोल्स ऑफ A जो होगा उसको कितना B लगने वाला है? ये कैंसिल आउट करेंगे 5 15, यानी 10 मोल्स ऑफ A अगर 15 मोल्स ऑफ B के साथ कंबाइन किया तो फिर कितना दे देगा? 25 मोल्स ऑफ C। 25 मोल्स ऑफ C। अभी मैं दोनों रिएक्टेंट, अभी जो भी एग्जांपल कर रहा हूं, दोनों रिएक्टेंट का इक्वल अमाउंट, दोनों खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि 10 मोल लिया, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? 50 मोल के साथ। तो 10 मोल्स और 50 मोल्स दोनों आपस में कंबाइन हो गए और टोटल C कितना बन गया? 25। तो रिएक्टेंट तो पूरा खत्म हो गया ना, A भी पूरा खत्म। A का 10 मोल था, B कितना चाहिए? 15 मोल चाहिए, और 15 मोल ही हमने लिया था। तो A भी पूरा खत्म हो गया, B भी पूरा खत्म हो गया। तो A 10 मोल, B 15 मोल, दोनों ही रिएक्टेंट खत्म होके आपस में कंबाइन हो गए और बना दिए प्रोडक्ट। समझ में आया? ये तीनों एग्जांपल से पहले इतना समझ में आया कि आपके पास 2 रिएक्टेंट थे, दोनों ही कंज्यूम हो गए, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गए। अब LR की जो हम बात कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट LR, लिमिटिंग, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि वो रिएक्शन को लिमिट करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट देखो वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाए, जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं LR। ये हमने लिखा है, डेफिनेशन पढ़िए। LR की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली व्हेन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम A और B को इक्वल अमाउंट में ना लें, जैसे हमने इस एग्जांपल में A लिया था 10 मोल। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, पहले सुनो इसको। A लिया है 10 मोल, B लिया था 15 मोल, 10 मोल 15 मोल के साथ कंबाइन हुआ, प्रोडक्ट बनाया 25। करेक्ट? अब मैं बोल रहा हूं कि A को मैं 10 ही रख रहा हूं, A को मैं 10 ही रख रहा हूं, लेकिन B मैंने 15 की जगह मान लो ले लिया होता 30 मोल्स, 30, 15 की जगह 30 मोल्स लिया होता, तो जो A के 10 मोल हैं उसको कितना B लगने वाला है? A के 10 मोल्स को कितना B लगने वाला है? रिएक्शन यही है, रिएक्शन जो लिखी हुई है, 10 मोल्स ऑफ A को कितना B लगने वाला है? 15 लगने वाला है। अभी अभी हमने किया सब, अभी तो हमने लिखा ये सब कि 10 मोल्स ऑफ A को 15 मोल्स ऑफ B लगेगा। तो 10 मोल्स ऑफ A को 15 मोल्स ऑफ B की ही रिक्वायरमेंट है, वो उतने के साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन आपके पास B एक्स्ट्रा अमाउंट में है, 30 मोल्स है, तो 15 तो कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद भी B बच जाएगा, लेकिन A पूरा खत्म हो गया। तो क्या रिएक्शन उसके बाद चलेगी? नहीं चलेगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी।
तो वही जब रिएक्शन स्टॉप हो गई तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है उसको हम बोलते हैं एलआर। अब चौथा एग्जांपल हम एलआर का समझते हैं यहां पे। तो हमने इस बार फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने N2 3H2 लिया था, N2 3H2 ये मान लो 2NH3। अब N2 आपको बोला गया है 10 मोल्स और H2 आपको दिया गया है 50 मोल्स और पूछ रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये क्या करेंगे इसको, अब पहले समझिए, नोट करिएगा बाद में। अब यहाँ पे हर एक इक्वेशन में कुछ भी मोल्स दिया जाएगा, कुछ भी वैल्यूज दी जाएंगी, हमको एलआर फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है एलआर जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ H2। ये करेक्ट है। 1 मोल N2 को कितना H2 रिक्वायर्ड है, 3 मोल चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो हमें यही बता रही है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 3 और बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए रिएक्शन करने के लिए, NH3 बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए तो 10 मोल N2 को कितना H2 चाहिए होगा। तो 10 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड 3 into 10 यानी 30 मोल्स ऑफ H2। सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 मोल को अगर 3 मोल चाहिए तो 10 मोल को 30 मोल्स चाहिए, यानी 10 मोल्स ऑफ N2, 10 moles of N2 required 30 moles of H2. So 10 moles of N2 required 30 moles of H2। करेक्ट है ये, लेकिन H2 हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा है, 50 मोल्स है, तो H2 तो बचा है, H2 अभी हमारे पास और भी है, हम और आगे रिएक्शन करा सकते हैं, प्रोडक्ट और बना सकते हैं क्या। लेकिन अब प्रोडक्ट और आगे बन सकता है, नहीं बन सकता आगे, क्यों, क्योंकि N2 खत्म हो गया। N2 हमने 10 मोल लिया था और 10 मोल N2 30 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर चुका है, तो N2 तो बचा ही नहीं। जब N2 खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब रिएक्शन अब रुक जाएगी। H2 अभी भी अवेलेबल है, H2 50 मोल है, 50 मोल है, अभी भी H2 अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि N2 खत्म हो चुका है और प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों चाहिए हमको, तो N2 बोला जाएगा LR। N2 कैसे खत्म हो गया, N2 कितना है, कितना N2 लिया गया है, 10 मोल। हाँ तो कहां गया वो 10 मोल, कर क्या रहे हैं इस 10 मोल का, करना क्या हमको एक्चुअली, करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है भाई, प्रोडक्ट बनाना है ना, 3H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये पूछा है, तो रिएक्टेंट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट होता क्या है, कुछ पढ़े ही नहीं हो तुम लोग 9th-10th में। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो खत्म होगा ना रिएक्शन में। रिएक्शन जब भी कोई लिखी जाती है तो एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो खत्म होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का काम है आपस में मिलकर प्रोडक्ट को बनाना। तो जब प्रोडक्ट बनने लगेगा तो रिएक्टेंट खत्म होगा ना, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है वही तो हमें देखना है। तो हमारे पास 10 मोल्स H2 है, N2 है, 50 मोल्स H2 है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों से मैं कितना प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो 10 मोल्स N2 रिक्वायर्ड 30 मोल्स ऑफ H2, तो 10 मोल्स N2 ये लाइन क्या लिखी है, ये क्या लाइन क्या लिखी है कि 10 मोल्स N2 30 मोल्स H2 की रिक्वायरमेंट है, यानी 10 मोल N2 30 के साथ रिएक्ट कर लेगा। जब 10 मोल 30 के साथ रिएक्ट कर गया तो उसके बाद N2 कितना बचेगा, जब 10 मोल्स N2 30 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बचेगा कितना N2,
जीरो ही बचेगा ना, तो खत्म ही बोलेंगे ना उसको, N2 खत्म हो गया, जीरो बचा है, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर लिया 30 मोल्स के साथ। H2 अभी भी बचा होगा 20 मोल्स, क्योंकि H2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो H2 20 मोल्स बचा होगा, N2 पूरा खत्म हो गया क्योंकि N2 के 10 मोल्स ने H2 के 30 मोल्स के साथ रिएक्ट कर लिया। सो हम लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 10 मोल्स ऑफ H2N2 10 moles of N2 10 moles of N2 combine with 30 moles of H2, 10 moles of N2 combine with 30 moles of H2 and gives, कितना देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है, तो 10 मोल से कितना बनेगा प्रोडक्ट, 20 मोल्स NH3। 20 मोल NH3, 20 मोल N 10 मोल N2 30 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा 20 मोल्स। उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। तो बताइए, सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन एंड होगी तो क्या क्या बचा होगा आपके पास, एंड ऑफ द रिएक्शन जब रिएक्शन खत्म हो चुकी है, मोल्स ऑफ N2 कितने होंगे, 0, क्योंकि वो 10 मोल्स तो कंबाइन कर चुके। मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे, मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे, 30 मोल्स H2 के कंबाइन कर चुके हैं, तो टोटल थे 50 और उसमें से 30 कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बना दिए, तो बचे कितने H2, 20 मोल्स। और मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा, मोल्स ऑफ NH3 विल बी 20। तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपके पास दो चीजें होंगी बची हुई, H2 होगा 20 और NH3 होगा 20, बाकी N2 क्या है, 0। अब हम क्यों बोल रहे रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो गई, अभी तो H2 बचा हुआ है, H2 है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को तो खत्म करना होता है, तो रिएक्शन अभी कैसे रुकेगी, अभी तो रिएक्टेंट खत्म ही नहीं हुआ, रिएक्शन इसलिए रुक जाएगी क्योंकि N2 खत्म हो चुका है, N2 है ही नहीं, N2 0 है, तो रिएक्शन आगे चल ही नहीं सकती। सो रिएक्शन ने कंप्लीशन अचीव कर लिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो डेफिनेशन हमने यही लिखी है, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, यानी जब रिएक्शन कंप्लीशन को अचीव कर रही है, या ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। क्यों, तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पे कौन होगा, LR। LR कौन होगा हमारा, N2, N2 विल बी LR, हमारा N2 LR है, ये N2 इधर ऊपर दिखा देता हूं, ये N2 LR है, तो इसको हम बोले लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग का वर्ड का मतलब दिमाग में बैठाइए, लिमिटिंग रीजेंट का मतलब लिमिट करना, यानी ऐसा रीजेंट जो लिमिट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, रिएक्शन को रोक दे रहा है। तो N2 वो कंपोनेंट है जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे रहा है, क्योंकि N2 खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो इसलिए ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। तो वो रिएक्टेंट जो पूरा कंज्यूम हो जाता है वही हमेशा लिमिटिंग रीजेंट होता है, क्योंकि वो जब रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। अगर एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। समझ आया क्या क्या बताया अभी, अभी ये समझ में आया। सो N2 विल बी LR। अभी किसको डाउट है बताइए, किसको डाउट है इस एग्जांपल में, नो डाउट, यहां पे एक लाइन ऐड कर लीजिए फिर लास्ट में। सो N2 विल बी LR, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, N2 विल बी LR, क्योंकि N2 पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका है, H2 तो अभी भी बचा है लेकिन N2 खत्म हो गया,
तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और इसलिए हम N2 को बोलेंगे Lr। बचे हुए H2 का कुछ नहीं करना है भाई, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ ना, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों करते हो। हाँ नोट करो ना ये एग्जांपल, बचे हुए H2 का कुछ नहीं करना है, जितना चीजें बताई जा रही पहले वो समझो। H2 का बचे हुए का जो करना है करिए। इंडस्ट्री में आप बना रहे हैं अमोनिया, बना रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो बच गया उसको लेके जाओ, जो करना है करो, लेबोरेटरी में जो करना है करो, तुम्हारे ऊपर है। कहीं और यूज करेंगे और क्या करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास N2 विल बी Lr। ये नोट करिए एग्जांपल। चलिए नोट कर लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल। चलो जिसने नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, नहीं नोट किया तो बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जो एग्जांपल हमने लिया था 2A3B gives 5C, ठीक है। इस बार इसके मैंने लिए 20 मोल्स, ये 20 मोल्स है, और इसके ले लिए हमने 50 मोल्स। एक का 20 एक का 50, 20 मोल्स 50 मोल्स, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी के कितने मोल्स बनेंगे, और साथ में पूछा है एलआर कौन होगा, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। एलआर क्या होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी कितने होंगे। एलआर कौन होगा और मोल्स के प्रोडक्ट कितने बनेंगे। सी मोल्स 50, एलआर विल बी ए। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। अभी तो अभी सिंपल रिलेशन बस यही लिखना है कि हम पहले स्टैचोमेट्री देखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ ए combine with 3 moles of B, 3 moles of B and gives 5 mole of C, 5 moles of C। पहले रिलेशन लिखिए स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। फिर उसके बाद 2 मोल A जो है वो कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 3 मोल B के साथ, 3 मोल B के साथ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 moles of A combine with 3 moles, combine with 3 moles of B। तो बताइए 20 कितने के साथ कंबाइन होगा। अगर 2 3 के साथ कंबाइन हो रहा है तो 20 30 के साथ कंबाइन होगा, 20 30 के साथ कंबाइन होगा, सिंपल लॉजिक। तो 20 मोल्स ऑफ ए कंबाइन विद 30 मोल्स ऑफ बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 मोल्स ऑफ ए कंबाइन विद 30 मोल्स ऑफ बी, और प्रोडक्ट कितना दे देगा, कंबाइन विद 30 moles of B
and gives 50, क्योंकि इसके 2 मोल से इसका 5 बन रहा है, तो इसके 20 से इसका कितना बनेगा 50. So 20 moles of A will give 50 moles of C. 50 moles of C. उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि हमारे पास A केवल 20 मोल है. A है ही हमारे पास केवल 20 मोल और पूरा वो कंबाइन कर चुका है. तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन एंड होगी उस टाइम पे क्या क्या प्रेजेंट होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना होगा. ए के मोल्स कितने बचे होंगे 0, क्योंकि ए तो 20 मोल कंबाइन हो चुका है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बी होगा 50 माइनस 50 मोल्स से और 30 मोल्स तो कंबाइन कर लिए 20, एंड देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, सी के कितने मोल्स हैं 50 मोल्स. तो सी तो प्रोडक्ट है, तो आपको पूछा था प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो एक आंसर हो गया 50 मोल्स. ये हो गया आपका आंसर. फिफ्टी मोल्स. और साथ में ये भी पूछा था एलआर कौन होगा, तो ए विल बी एलआर. जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा रिएक्शन में वो होगा एलआर. नोट करिए जल्दी. नोटेड ना. चलिए देन नेक्स्ट एग्जांपल 6. अभी रिलेशन यूज कर रहे हैं 3a plus 5b gives 6c, और इसके मोल लिए गए हैं 45 मोल्स और इसके लिए गए हैं 20 मोल्स. तो प्रोडक्ट कितना बनेगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, we have to calculate number of moles of C and the LR, लिमिटिंग रीजेंट LR कैलकुलेट करना. बताइए.
क्या हुआ मयूरी, आप नोट नहीं कर पाए? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग, फिर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट कर लो। नोट कर लिया ना क्वेश्चन? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, थोड़ा स्पीड। जी के आपका भी रह गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से। जिसका रह गया नोट करो, बाकी लोग क्वेश्चन आंसर बताइए। उसका पहले का कौन सा, ये? नोट करो फिर। कितना आया? C50 एंड LRB। ठीक, LRB आ गया। एंड मोल्स फाइनल C के कितने? 24। अच्छा, श्रावणी आपका आंसर है 50। ठीक है, प्रशांत का क्या है? LRB मोल 24। मोल 24 LRB। ओके गुड। ठीक है, मोल 24 LRB करेक्ट है ये। जिसका आंसर नहीं आया ट्राई करिए। अभी LR पे लिमिटिंग रीजन का जो एक्सरसाइज मैंने दी थी वो आपको होमवर्क है, मैं होमवर्क दे भेजता हूँ ग्रुप पे। एक्सरसाइज थर्ड वन हमने जो भी किया था ना, लेवल 1 लेवल 2, उसमें लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं सबको। जिसका आंसर ये नहीं आया ट्राई करिए, इसके बाद कल करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। अभी सब लोग जाके आज पूरा LR रिवाइज करके आएंगे, जो भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से लेके LR जितना आज पढ़ाया है, डेफिनेशंस के साथ रूल पढ़ के आइए पूरा रिवाइज करके, तब आगे क्वेश्चंस होंगे। अभी तो मैं एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। A+2B3C एकदम सिंपल एग्जाम है, अभी ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। तो पहले LR फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे प्रोडक्ट कितना है, फिर उसके साथ साथ बाकी चीजें आएंगी, परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी, वो सब ऐड हो सकता है उसमें। ठीक है, चलिए बाय। हाँ, मोल 24 करेक्ट है। होमवर्क एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ कौन सी, ग्रुप पे मैं डालता हूँ, ग्रुप पे डालता हूँ।